So, guys, I welcome you all officially to the first session for the Introductory Development Economics class. This is a course which is relevant for everyone, whether you're doing honors course, whether you're doing major in economics or minor in economics. सबके लिए this course is going to be relevant with slight changes in your readings and slight, there are some readings which have a little bit of math, where for major and minor students, it has been specifically mentioned that you do not have to do or get involved in too much of mathematics. Otherwise, course is more or less similar. Jahan jahan pe bhi there are changes, they have specifically mentioned it. So we will be taking this course for everyone. जो भी readings separately we have to do, we will be doing it for honors, for minor, for major, everybody. All the readings we are going to cover. जो चीजें specifically major students के लिए होंगी, we will be mentioning that. जो reading specifically minor students या major students के लिए होंगी, we will be mentioning that as well. ठीक है? So उस चीज को लेके you don't have to worry at all. आपका exam pattern, everything is going to be the same, except obviously your exams will be taken differently, papers will be different. All right. So सबसे पहले तो let's start with your different units. First unit will be introducing economic development. So basic चीजों के बारे में we will be talking. Guys, before that, everybody is fine with Hindi English mix of all, or anybody is having any trouble with this medium of explaining? We are fine with Hindi English mix currently, what we are using right now. Yes, ma'am. ठीक है ना, चलो ओके। किसी को किसी भी पॉइंट पे कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी कुछ भी बोलना हो, किसी भी तरीके की रिक्वेस्ट हो, फील फ्री टू रीच आउट वाया व्हाट्सएप right now also, unmute, text, whatever, every door is open. All right, fine, ठीक है। So first we'll start with introductory development economics में first unit will be, we will be introducing what actually is economic development, the concept of economic development, what all you will be studying in economic development, इसका मीनिंग क्या होता है, किस किस तरीके की चीजें इन्वॉल्व होती हैं. In today's lecture also we are going to kind of just touch base on what all kind of questions we are going to see. एक ब्रॉड ओवरव्यू लेंगे हम लोग, देखेंगे कि क्या क्या तरीके की चीजें डिस्कस होती हैं, और किसी को मान लो इस तरीके की फील्ड में ही आगे जाना है. सम पीपल आर वेरी फैसिनेटेड अबाउट दिस फील्ड. आई एम ऑल्सो फैसिनेटेड अबाउट दिस फील्ड. So, what kind of questions you will be dealing with, what kind of things you will be talking about, वो हमारा मेन एजेंडा रहेगा आज के सेकेंड हाफ ऑफ द लेक्चर का. ठीक है. सो वी विल बी इंट्रोड्यूसिंग इन द फर्स्ट यूनिट कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता क्या है, किस किस चीज को डेवलपमेंट बोलते हैं, क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, फिर अलग अलग कंट्रीज में किस किस तरीके से कंपैरेटिवली परफॉर्मेंस रही है कंट्रीज की, कौन सी कंट्री किस लेवल पे डेवलप हुई है, उनका कंपैरेटिव लेवल पे एनालिसिस भी हम लोग करेंगे. एंड द रेफरेंस फॉर दैट इज गोइंग टू बी योर बुक, Todaro and Smith. This is one book which is going to be used multiple times. And so Smith and Todaro 2020 edition, chapter number 1 and chapter number 2. The parts which you don't have to do have been specifically written. This part is not supposed to be done. So appendix nahi karne hai, case studies also are not supposed to be done for this chapter also and for this chapter also, right? So ये part आपको नहीं करना है. Then there is something called Human Development Report, which is released every single year. So उसके technical notes आपको पढ़ने हैं. And this part is only to be done for economics honor students. और इस technical part में आपको बताया हुआ है कि Human Development Index, there is something called HDI, Human Development Index. How do you calculate Human Development Index? तो उसकी technicalities हैं. तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस तरीके से कैलकुलेट होता है, उसकी डिटेल्स हमें जो है समझनी है. ठीक है. सो दिस पार्ट हैज टू बी डन ओनली बाय द इकोनॉमिक्स ऑनर स्टूडेंट्स. एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को ही पढ़ना है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन. सो देयर इज अ बुक, द न्यू ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू इकोनॉमिक्स इन इंडिया. उसमें देयर इज अ स्मॉल सेक्शन बाय Sita Prabhu on Human Development Index. This part has to be done by economics major and minor students. And उसमें जो भी मैथमेटिकल पोर्शन है, जहाँ पे भी कंप्यूटेशन है, मैथमेटिकल कंप्यूटेशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स,
that has to be de-emphasized, meaning don't worry about that too much. ठीक है, so ये हमारी फर्स्ट यूनिट होगी जिसमें हम लोग हर चीज को इंट्रोड्यूस कर रहे होंगे. देन we will be talking about unit number 2, which is what are the different theories of economic development. This unit is common for both major, minor, and honor students, and the reference will be the Todaro book. Again, this will be used multiple times. And the third chapter from this, Classic Theory of Economic Development, exclude the appendix and case studies, and for major and minor students, de-emphasize the mathematical portion. So wherever you see too much mathematics, you can just, kind of not think too much about that. Only for major and minor students. We'll be doing everything. Wherever there is too much mathematical part, major students, minor students, feel free to, not worry too much about that. ठीक है, अलग अलग जो theories हैं economic development based, we will be talking about that. So that will be unit number 2. And then finally, unit number 3. This unit is also common for everybody, major, minor, honor students. अब इसमें क्या है? We have basically three readings. First is a paper by Nurse, Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries. So this particular एक paper है 1961 में, this was written. We will have to refer that particular paper. Apart from that, there is this book, Rival Views of Market Society. Usme there is one particular chapter, chapter number 3, Linkages in Economic Development. We will have to refer that. And then there is another book, Pathways to Economic Development. We have to refer chapter number 6 from there, Strategies for Economic Development. So that is also the name of the unit, which is Strategy of Economic Development. What are the different ways, what are the different strategies that we have in place for going ahead with economic development? What are the things that we have seen countries implementing, seeing, analyzing? वो सब हम लोग देखने वाले हैं. ठीक है, this is something which is common for everyone. All right, so ये हमारी unit number 3 होगी. And then finally, last thing, unit number 4, which is kind of very interesting, poverty and inequality. तो इसमें हम लोग देबराज रे, अमृत्या सेन, इन सब के जो बुक्स, इनके द्वारा जो बुक्स लिखे हुए हैं, वी विल बी रेफरिंग टू देम. सो first, this particular section by Amritya Sen, Development as Freedom, this particular book, this is common for everyone. And from here, we will have to refer chapter number 4, which is Poverty as Capability Deprivation. So the main idea that, poverty is not just lack of money, yeah, lack of access of other things, but it is the lack of opportunities that people have once they become poor, so that they're not able to come out of that trap. So that idea, that is the main thing जिसको हम लोग in detail हम लोग पढ़ने वाले हैं, that इंसान अपने आप को capable ही नहीं बना पा रहा है, and he's lacking the opportunities which can help him get out of the poverty trap. That was the main idea basically. तो उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4. And then there are 2 main references. This particular section is to be referred only by honor student. This particular section is only to be referred by major and minor student. So देबराज रे, इनका भी आपने काफी नाम सुना होगा. डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स नाम की इनकी एक बुक है, उसमें चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 8, ये आपको रेफर करना है. दिस इज द बुक. And then for major and minor students, you have to refer chapter number 6 and chapter, some sections from chapter 5 as well. So chapter number 6, Poverty, Inequality and Development and Economic Development, only up to and including. Let me just check. I think it should be 6.5. I think it should not be 5.5. I will just check quickly in a while, right now only. So chapter number 6 you have to cover from the same book, Todaro and Smith, जो हमने बिल्कुल starting में देखी थी. ठीक है, so this section only has to be done by the major and minor students, right? So ये हमारा जो है मेन कोर्स वर्क रहेगा. बहुत ही डिटेल में क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, that has been explained. So there is no problem in that regard. Let me just quickly tell you
or I'll just clarify. I'll just text you on the group. But I think it should be 6.6. Anyways, coming back. So this is your course content, and your examination scheme is going to be as follows, as mentioned in your minutes for the meetings, that you will be asked 8 questions, out of which you will have to attempt 5. So एक question जो है वो 18 marks का होगा. So you will have choice between 8 में से यू विल हैव टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस. सो इंटरनल चॉइस रहेगी आपके पास कि आप 8 में से कोई भी 5 क्वेश्चंस पिक कर सकते हो. बट दिस पेपर काइंड ऑफ इज थियोरेटिकल थोड़ा सा, तो यू विल हैव टू राइट अ लॉट. So in that sense कि lot of writing is involved, that is why one question is going to carry 18 marks. And बहुत ज़्यादा सब parts या बहुत ज़्यादा numerical based ये paper नहीं होता है. It's mostly a theory based paper. And this scheme is going to be followed for all the students, major, minor, honors. आपका किसी भी तरीके का course हो, same scheme is going to be followed as far as the information so far that has been provided by the university is concerned. Fine. तो ये जो है, ये सारी की सारी डिटेल है अभी तक जो यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड करी है. ठीक है. अगर इसमें किसी को किसी भी प्रकार की डाउट है, कुछ भी पूछना है, सो फील फ्री टू डू दैट. ऑल गुड. एनी डाउट्स? No, okay, no doubts. Fine. All right. So, guys, okay, since there are no doubts, let's go ahead. And, ma'am, it's chapter 5 up to section 5.5. Yeah, I was just checking that only. Let me also just check it once. So, just a moment. Yeah, okay. So instead of chapter number 6, it is chapter number 5, and it is only up to and including section 5.5. Got it. Perfect. Okay, so let's just make this slide correction here, that it is only this part. That this particular section that I've mentioned, this is chapter number. This is chapter number 5 and not 6. And here it is still 5.5 only. Fine. Okay. All right. So let's start. अच्छा ठीक है, चलो. First of all, let me just ask you, let me start by saying the following. The name of the course is Introductory Development Economics. So
ठीक है, आप जब से आपने क्लास 11 12 में इकोनॉमिक्स टर्म सुनी है, 11 12 10th डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स तो सुनते ही आए हो ये टर्म, ठीक है। तो पहले तो आप मुझे ये बताओ कि आप डेवलपमेंट से क्या समझते हो, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेनेवर यू हियर द टर्म डेवलपमेंट। It's very common for us to use it in everyday language. So what is it that you mean when you say development? That is one thing. And what is it that you feel कि we are going to understand or talk in this particular subject? Development economics में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं? What do you feel all of this is going to be happening here? क्या किस तरीके की चीजें हम लोग करने वाले हैं? Let's start. चलो। एंड गाइज दिस इज नॉट अ कोर्स जिसमें कि हाँ ठीक है, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू वन कॉन्सेप्ट एंड देन वी आर जस्ट प्रैक्टिसिंग द न्यूमेरिकल्स फॉर दैट। इट्स नॉट अ कोर्स लाइक दैट एंड इट शुड नॉट बी अ कोर्स लाइक दैट। दिस इज अ वेरी इंटरेक्टिव कोर्स। You think something, I think something, I challenge you with something, you challenge me with something, you argue with me, I argue with you. It's like that. अगर इस तरीके से हम लोग करेंगे then only we are going to have the best possible output out of this discussion. तो इट्स अ कोर्स लाइक दैट, डोंट वरी। हमारी रीडिंग्स भी हम करेंगे, सब टॉपिक्स आपको समझ में भी आएंगे, एवरीथिंग इज गोइंग टू हैपन अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, बट participation is going to be very very important in this particular course. So chalo, let's start. What comes to your mind whenever you hear development, and what do you feel we are going to understand when we are studying development economics? क्या लगता है कि क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग development economics में? Betterment in different ways, economically, socially. That's good, very nice. Betterment होना, very good. Economically, very good. सोशली, सोशली बेटरमेंट होने का क्या मतलब है? इकोनॉमिकली मतलब कि ठीक है, फाइनेंशियली आप इंप्रूव हो रहे हो, आई थिंक दैट इज व्हाट यू मीन, राइट? Yes, ma'am, right. ठीक है, सोशली बेटरमेंट होने का क्या मतलब हम समझते हैं हमारे दिमाग में? हम बोलते तो हैं कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, लेकिन क्या मतलब है उसका? ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो रहा है, ठीक है, वेरी नाइस। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का क्या मतलब है? तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या चीजें आती हैं? सोशल मीन्स सोसाइटी बेटरमेंट। सोसाइटी बेटरमेंट क्या होता है? जैसे ना देखो, कभी भी कोई चीज सोचनी है, अब आप हमेशा पर्सनल लेवल पे सोचो कि आप ये कब बोलोगे कि आपकी फैमिली का बेटरमेंट हुआ है। जैसे मान लो आप पूरा फैमिली बैठे और आप डिस्कस कर रहे हो, आप इमेजिन कर रहे हो कि भाई हम एक फैमिली पहले एक सिचुएशन में थे, अब हम इस सिचुएशन में हो गए हैं, अब हमने बहुत डेवलपमेंट कर लिया है। तो आप किस पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो कि हमने डेवलपमेंट कर लिया है? So social would mean that people at low rank get more opportunities in terms of job. Very nice. So social, okay. So one thing social would mean more opportunity in terms of jobs and education. ठीक है. So ये थोड़ा सा ठीक है. Opportunities better हो गई हैं. Job opportunities मिल रही हैं. Better education है. ठीक है. Good. Better opportunities हैं. सोशली बेटरमेंट का मतलब क्या है कि समाज में आपको रिस्पेक्ट मिल रही है,
ये हो सकता है ना, समाज में आपको कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, डिग्निटी के साथ आप जी रहे हो, राइट? वेरी नाइस। इसी को तो बोलेंगे ना सोशल अपलिफ्टमेंट, सोशली डेवलप, सोशल सोशली अपने आप को डेवलप करना। Why do most people want to do an IAS job? There are far better ways of being economically more developed. Yes or no? But why do people still want to do that? For social status. That is a very big reason. And what does social status come into? What happens when you get a social status? सोशल स्टेटस से क्या होता है? सोशल सोशल स्टेटस किसी को मिल जाती है तो क्या होता है? पीपल फील रिस्पेक्टेड, पीपल फील कि बाकी लोग उनको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, देयर इज अ रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, दे फील पावरफुल। सो मतलब इंसान को ये सब चीजों की भी नीड फील होती है, राइट? तो ये सारी चीजें भी इंसान सीख करता है वेन एवर दे टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट, कि आप जिस सोसाइटी में रहते हो आपको कोई अपशब्द ना बोले, आप डिसरिस्पेक्ट तरीके, आप किसी भी डिसरिस्पेक्टफुल मैनर में ना ट्रीट किए जाओ, आपको बॉयकॉट ना किया जाए, आपको अलग थलग ट्रीट ना किया जाए। ये सारी चीजें भी मैटर करती है ना। आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो, आपकी बेसिक चीजें, बेसिक इम्यूनिटीज फुलफिल हो रही हो, आपको पीने का पानी अच्छा मिले, राइट? सैनिटेशन अच्छा हो। ये सारी चीजें भी तो डेवलपमेंट का हिस्सा है ना। आप डिप्रेस्ड फील ना हो, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ स्टीम अच्छी हो, आपको फ्रीडम हो अपने दिमाग में, अगर आप कोई ड्रीम कर रहे हो कुछ चीजें, तो वो अपॉर्चुनिटीज को आप चेज कर सको। ऑल ऑफ दिस कंबाइंड इज डेवलपमेंट, राइट? है कि नहीं? तो तो डेवलपमेंट जो है वो इकोनॉमिक सेंस में भी होता है, डेवलपमेंट सोसाइटी सेंस में भी होता है, डेवलपमेंट पर्सनल सेंस पे भी होता है, डेवलपमेंट मेंटल सेंस पे भी होता है, कि लोगों के थॉट्स को एक्सप्रेस करने की फ्रीडम है आपके पास, आपके पास अपनी ड्रीम्स को परस्यू करने की फ्रीडम है, आपके पास वो सब रिसोर्सेज हैं जिससे आप अपॉर्चुनिटीज को परस्यू कर सकते हो। तो ऑल ऑफ दिस कंबाइंड मीन्स, all of these things combined रेफर टू डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये जो है ब्रॉड सेंस में डेवलपमेंट का मीनिंग होता है। इन जनरल किसी की भी जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, उसकी कैपेबिलिटी को इंक्रीज करना, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना, उनकी सेल्फ स्टीम को इम्प्रूव करना, उनकी फ्रीडम को बढ़ाना, उनकी कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव करना, ये सब मिला जुला के जो है वी से दैट दिस इज डेवलपमेंट। फाइन? आर वी फाइन विद दिस कंक्लूजन? ठीक है, चलो, ओके। तो अब ठीक है, हमने ये समझ लिया ये होता है डेवलपमेंट। तो अब हम लोग डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में किस तरीके के डिस्कशन करेंगे? What kind of discussions we are going to have? I will tell. But in general sense, what do you feel? क्या लगता है आपको किस किस तरीके की चीजें होने वाली हैं? देखो, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट द थिंग्स दैट यू सी ऑल अराउंड यू, जो हम अपने आसपास होते हुए देखते हैं, जो हम टीवी पे देखते हैं, जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, एंड ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ इट, व्हाई द थिंग्स आर द वे दे आर, व्हाई देयर आर सो मेनी डिफरेंसेस between countries, why some people are poor, why some people are so rich, why some countries are so rich,
Why some countries have so much per capita income? Why some countries have so high population growth rate? All of these things are going to come under the purview of development economics. So let me just mention the points slowly कि किस किस तरीके से जो है हम लोग किस किस तरीके के क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं. So first of all, so the first question is why living conditions differ drastically. So why are living conditions so different between countries? And within a country, why are living conditions so different between one region and another region? इस क्वेश्चन का आंसर फिगर आउट करना, इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो उसका आंसर हम लोग फिगर आउट करें. दैट इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस पर्टिकुलर कोर्स. ठीक है. व्हाट एल्स? अब डिस्पैरिटी सिर्फ लिविंग कंडीशंस में नहीं होती, डिस्पैरिटी हर चीज में होती है. अगर किसी भी दो इंसान, एक बहुत गरीब है एक बहुत अमीर है, उनकी जिंदगी को अगर नोटिस किया जाए तो उनकी जिंदगी में जो डिस्पैरिटी है वो बहुत अलग अलग लेवल पे है. वो जो डिस्पैरिटी है वो इनकम में भी होती है. ठीक है. और किस किस चीज में डिस्पैरिटी हो सकती है? डिफरेंसेस किस किस चीज में आ सकते हैं उनके? नेम समथिंग. इमेजिन अ पुअर पर्सन, इमेजिन अ रिच पर्सन. एम्प्लॉयमेंट, वेरी नाइस. सो एम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं. एम्प्लॉयमेंट या फिर उसको और ब्रॉड टर्म्स में मैं अपॉर्चुनिटीज बोल सकती हूँ. राइट. व्हाट एल्स? उनके हेल्थ के बीच में भी काफी डिस्पैरिटी होगी. राइट. उनके वेल्थ में भी काफी डिस्पैरिटी होगी. पूरे इंसान के पास कोई एसेट्स ही नहीं होंगे, दूसरे इंसान के पास एसेट्स होंगे. राइट. न्यूट्रिशन, इनके एजुकेशन लेवल में भी बहुत डिफरेंस होगा. राइट. इनकी चॉइसेस में भी बहुत अंतर होगा. राइट. फ्रीडम ऑफ चॉइसेस. ठीक है. किस तरीके की जगह पे ये लोग जा सकते हैं? एक्सेस टू मार्केट, लिविंग कंडीशंस, वेरी नाइस. लिविंग कंडीशन, एक्सेस टू मार्केट. इन्वायरमेंट की क्वालिटी, जिस तरीके के इन्वायरमेंट में वो रह रहे हैं या जिस तरीके इन्वायरमेंट क्वालिटी. ठीक है. डू दे फील सेफ और नॉट? सेफ्टी ऑल्सो मैटर. सिक्योरिटी. राइट. ऑल ऑफ दीज थिंग्स मैटर. राइट. तो ये सब चीजों के बीच में भी लोगों के डिफरेंस होगा. तो ये डिफरेंसेस क्यों हैं और कितने डिफरेंसेस हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, ये सब भी हम लोग समझना चाहते हैं. ये सारी चीजें भी हम लोग डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं. उसके अलावा जब आप अलग अलग कंट्रीज को नोटिस करते हो, जब आप अलग अलग कंट्रीज को देखते हो, तो हमें ये देखने को मिलता है कि कुछ कंट्रीज का जो आउटपुट पर वर्कर है, या आप जीडीपी पर कैपिटा कह लो, आउटपुट पर वर्कर कह लो, कुछ कंट्रीज का तो बहुत कम है, कुछ कंट्रीज का बहुत ही ज्यादा है. तो वो डिफरेंसेस क्यों है? व्हाई आर जीडीपी पर कैपिटा ऑफ सम कंट्रीज सो हाई एंड फॉर सम कंट्रीज इट इज सो लो? व्हाई इज दैट हैपनिंग? व्हाई आउटपुट पर वर्कर? So this is not an exhaustive list that we are making. These are just some examples of the kind of questions that we are going to deal with.
ठीक है, और द इंटायर डिसिप्लिन ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स डील्स विद. सो व्हाई आउटपुट पर वर्कर is much higher in some countries as compared to others. ठीक है. अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि कुछ कंट्रीज में बड़ी फॉर्मल जॉब होती हैं, सिक्योर जॉब होती हैं, फिक्स्ड पे होती हैं, प्रिडिक्टेबल जॉब होती हैं, लेकिन देर आर सम कंट्रीज वेयर पीपल आर लिविंग और डूइंग वर्क इन वेरी हार्श कंडीशंस, वेरी एक्सट्रीम कंडीशंस. They don't have very secure jobs. So why are there differences in working conditions between two countries? So working condition में differences क्यों हैं, right? वर्किंग कंडीशंस में डिफरेंसेस क्यों हैं? उसके अलावा कुछ कंट्रीज में पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी रैपिड है, कुछ कंट्रीज में पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, लाइक जापान द पॉपुलेशन ग्रोथ, population is declining, there is no growth actually. Here there the government is promoting policies ki please, do something. They have official government mandated dating apps so that there could be some population growth. Otherwise their population is shrinking, which is not good for the economy. So why are such differences happening? So why population growth differences? ठीक है, उसके अलावा और किस तरीके की चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे? जैसे आप देखते हो कुछ कंट्रीज में पब्लिक सर्विस जो है दैट इज क्वाइट एफिशिएंट, पीपल फील दैट पुलिस इज फ्रेंडली. कई जगह कई कंट्रीज में क्या होता है, पुलिस को एक फ्रेंडली ट्रीटमेंट मिलती है कि अगर आप पुलिस को फोन करते हो तो यू डोंट फील हेजिटेंट. बट the reality is in India, people are fearful of calling police. They don't want to call police for whatever reason, even if they are the victim, right? They feel कि पुलिस को बुला के तो मामला खराब ही होना है, right? तो why are the system like this? कई जगह चीजें efficient है, public service efficient है, public system of managing things is efficient. Why some places it is not efficient? Why are such differences there? तो ये सब भी हम लोग इसी सब्जेक्ट में पढ़ते हैं. Why are public services inefficient, insufficient, and corrupt in some countries? Have you guys seen, you see some small videos of people or kids calling 911 and then talking normally, very normally, without any fear. I'm not sure if you've seen. Say yes or no if you've seen them. किसी भी हालत में उनके कॉन्वर्सेशन को सुन के आपको ऐसा लगता है कि उन लोगों को डर लग रहा है वो कॉन्वर्सेशन करते हुए. So, so those things show that people feel that police is for their service there. Police is for helping them. So that is the kind of attitude, I mean, from those conversation, I feel वैसा ही होता है. I have not been there, so I cannot personally comment कि क्या होता है. But हाँ, जो देख के जो मुझे फील होता है वो ऐसा ही है कि हाँ, people feel कि friendly situation है और कोई भी इमरजेंसी है, उनको कुछ भी अगर समझ नहीं आ रहा है तो दे कॉल 911. जितना भी मैंने टीवी सीरीज देखे हैं, कुछ भी देखा है, वहां पे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, दिमाग नहीं चल रहा, कॉल 911. बस नहीं समझ में आ रहा, वो लोग देख लेंगे. इस तरीके की सिचुएशन है इन इंडिया. दे मतलब जब इंसान को जरूरत भी होगी कि भाई अब तो फोन कर लो, अब तो जरूरत है, तब भी लोग नहीं करेंगे कि
कहीं हम ना फंस जाए गलत तरीके से। गलती आपकी ना भी हो, आप विक्टिम हो, तब भी आपको डर लगेगा। तो this is the kind of differences in attitude. So why such differences exist? So these are the kind of things also that we are going to talk in this particular course. और किस तरीके की चीजें देखने वाले हैं हम ये भी देखेंगे कि अब ओवर टाइम बहुत सारी कंट्रीज ने प्रोग्रेस की है, ठीक है। तो हमें ये देखने को मिलता है कि कुछ कंट्रीज ने बहुत रैपिड ग्रोथ की है, कुछ कंट्रीज अपनी ग्रोथ, उन्होंने ग्रोथ तो की है बट वो ग्रोथ बहुत स्लो है। तो ऐसा क्यों है? जैसे कंट्रीज लाइक चाइना, कंट्रीज लाइक साउथ कोरिया, दे हैव डन रैपिड ग्रोथ इन देयर डेवलपमेंट। जब अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट देखो, इफ यू सी द स्टार्टिंग पॉइंट, दे वर बहुत सिमिलर लेवल्स पे थे। लेकिन अब जब आप उनका ग्राफ को देखते हो, दे आर इन सॉर्ट ऑफ द डेवलप्ड वर्ल्ड, दे आर गेटिंग एडेड टू दोज कैटेगरीज। सो दे हैव मेड मैसिव ग्रोथ, very significant development. So why is it that some countries are growing at a very rapid pace while the others are growing but not at the pace at which some of their other counterparts are growing? So why are there differences in growth? So why differences in growth? I will show you some very interesting graphs also. The time lapse graphs also, which will show you how this differences in growth is happening. Okay. All right. So this is another kind of question. What else are we going to see? We are also going to see that, on the health front, death rates have fallen, child illness rates have fallen. तो वो ओवरऑल ग्लोबली किस तरीके से फॉल हुए हैं और क्या क्या ऐसे एफर्ट्स किए गए हैं जिससे वो चीजें इम्प्रूव हुई हैं, ठीक है। सो डेथ रेट्स, child illness, etc. have fallen globally. How? और अगर कहीं पे अभी भी यू नो वो हाई हैं, तो उस चीज को कैसे टैकल किया जाए? हाउ टू इम्प्रूव? Differences in industrialization, absolutely, very nice. There are different levels of industrializations of different countries. कई जगह पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़िया से सेटअप हो पाया है, कई जगह नहीं सेटअप हो पाया। तो वो सब क्यों है? डिफरेंसेस इन इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। अब उसके अलावा सरकार को, हाँ, अब उसके अलावा सरकार के सामने, गवर्नमेंट के सामने जब इतनी सारे सवाल होते हैं, इतने सारे पैरामीटर्स होते हैं जब जिन पे उनको काम करना होता है, तो वो बहुत सारी पॉलिसीज भी लेके आती है। दे हैव लॉट्स ऑफ पॉलिसीज इन प्लेस टू इम्प्रूव ऑल ऑफ दीज थिंग्स. So how do we measure whether the policies that are in place, are they doing something or not? There are a lot of NGOs also, there are a lot of non-profit organization, there are a lot of non-government organization, which are involved in helping us improve in all of these sectors. So how impactful are they? How impactful are the policies that the government is implementing? वो कितने कारगर साबित हुए हैं इन चीजों को टैकल करने में, इन चीजों को इम्प्रूव करने के लिए? तो वो सब हम लोग कैसे मेजर करें, वो सब भी हम लोग यहीं पे देखेंगे। सो हाउ डू वी मेजर, हाउ टू मेजर हाउ टू मेजर the impacts of government policies? पॉलिसी इवैल्यूएशन एक बहुत बड़ी फील्ड है गवर्नमेंट के अंदर। तो ये बहुत ही बड़ी फील्ड है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है उसको, उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है पॉलिसी इवैल्यूएशन एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, राइट। अब कोई भी वो बहुत बड़ी पॉलिसी अगर वो इम्प्लीमेंट करती है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि एकदम से वो कंट्री लेवल पे अनाउंस कर देंगे। पहले वो
कोई भी बड़ी पॉलिसी अगर उनको इम्प्लीमेंट करनी है तो वो पहले छोटा पायलट प्रोजेक्ट रन करते हैं, ठीक है। वो पायलट प्रोजेक्ट छोटे लेवल पे रन होता है, वो पायलट प्रोजेक्ट की इम्पैक्ट को स्टडी किया जाता है, इसीलिए इम्पैक्ट असेसमेंट, पॉलिसी इवैल्यूएशन, ये सब फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर किसी को ये सब फील्ड में जाना है तो इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट्स आर वेरी मच इन डिमांड बिकॉज दीज फील्ड्स. So development economics, policy analysis, research associates, they are very much in demand because of these reasons. So the people who are interested on policy side, they read this particular subject, they understand all the technicalities, they study econometrics, they understand all the survey based work, they get some experience, and then they get good positions uh, in all the government based work. So if somebody is interested, you should definitely go ahead. Okay. It's a very interesting field. So how do you measure the impact of government policies and, different NGO programs that are happening? Fine. उसके अलावा ये सब जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हो रहे हैं, इनसे हम क्या क्या लेसन्स ले सकते हैं, ये भी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर कुछ चीजें हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि टू बिगिन विद कंट्रीज इतनी डिफरेंट थी क्यों, why was there so much divergence between the countries, why did the great divergence across countries come about, वो किस तरीके से आई कि अलग अलग कंट्रीज इतनी डिफरेंट हुई क्यों टू बिगिन विद, ठीक है। एंड उसके अलावा हिस्ट्री का क्या रोल रहता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, कि आपकी कोई एक हिस्ट्री रही है, उसका क्या रोल रहता है कि आप किस तरीके से डेवलप करोगे, आपके लोगों का माइंडसेट किस तरीके से रहेगा, वो किस तरीके से इम्पैक्ट करता है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को। सो हाउ डज हिस्ट्री इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट? These are the kind of questions that are going to be, at the forefront of everything that you do in development economics. ये मेन क्रक्स है जो भी आप पढ़ोगे डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में। तो हर चीज के क्वेश्चनिंग करना, कोई कंट्री अलग है तो क्यों अलग है, क्या रीजन है उसके बीच में, लोगों के वर्किंग कंडीशंस डिफरेंट हैं, लोगों का माइंडसेट अलग है क्या, लोगों का बिहेवियर डिफरेंट है क्या, लोगों की मेंटालिटी है क्या। जैसे इंडिया में कुछ चीजें बड़ी फेमस हैं, जैसे जुगाड़ कल्चर काफी एकदम पेक्यूलियर सी चीज मानी जाती है इंडिया में। जापान में लोगों का वर्क कल्चर, वर्क एथिक्स काफी स्ट्रांग माना जाता है, तो वो लोग काम करने को लेके बहुत सीरियस हैं एकदम, मतलब if you go visit Japan, people are very serious about working. They always keep working. That is precisely the reason why their population is also falling. The so even if the government is trying to implement policies जिसकी वजह से they promote कि people take some breaks, people go on vacation, but because of this कल्चरली इट हैज बिकम अ थिंग कि हाँ हमें हार्डवर्क ही करना है और हमें ब्रेक्स नहीं लेने हैं। तो ऑल दीज थिंग्स मैटर कल्चरली, साइकोलॉजिकली, किस तरीके की चीज एक्सेप्टेबल है कंट्री में, एक सोसाइटी में, ये सारी चीजें शेप करती हैं कि वहां का डेवलपमेंट किस तरीके से होगा। ठीक है, आप देखते हो कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में इस तरीके के लोग मिलेंगे जो सब बिजनेस कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर तरीके के एरिया में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो सब आर्म फोर्सेस में जा रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में आपको ऐसे लोग मिलेंगे कि जिनको सबको यूपीएससी करना है, ठीक है। तो वो किस लिए हो जाता है, और जिन लोगों को उस तरीके की चीजें करनी होती है वो सब एक ही एरिया में जानबूझ के जाने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि वहाँ का माइंडसेट, वहाँ के लोगों की बातचीत करने का तरीका, वहाँ का एक हाव भाव भी उसी तरीके का हो जाता है। तो लॉट ऑफ थिंग्स play a role in
getting something in play. History matters, mahal matters, psychology matters. Lot of things play their role in making something happen. ठीक है, तो ये सारी मेन चीजें हैं जो हम लोग पढ़ने वाले हैं. ठीक है, so these are the main points. अब उसके अलावा to get more and more familiar with the text तो हम पढ़ेंगे ही, वो सारी चीजें तो हमें पढ़नी है. But I would like to show you a few graphs which kind of give us some information on few of these questions that we have posed here. कुछ questions हमने पोस्ट किए हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके, इनइक्वालिटी को लेके, उसके बारे में थोड़े से ग्राफ्स हम लोग देखते हैं. ठीक है, so let me start sharing my screen and let me know if you are able to see it in a while. Okay, can you guys see my screen? Yes, ma'am. Okay, so guys, there is this website, and the name of this website is Our World in Data. Very interesting website. I will also post the link in the chat box right now in case anybody wants to explore it. ourworldindata.org. ठीक है, तो ये वेबसाइट जो है वर्ल्ड बैंक या और जो भी ओपन सोर्स रिसोर्सेज हैं वहां से डेटा लेते हैं. एंड दिस इज समथिंग, it's an open source website, so you can use the data wherever you want to present it. So Oxford Martin School, University of Oxford, Our World Data, it's a project of the Global Change Data Lab, which is a registered charity in England and Wales. So that's about this particular website. But what they do, let's see that. तो बहुत अलग अलग पैरामीटर्स हैं जिसपे बेस्ड आर्टिकल्स भी काफी सारे होते हैं, और काफी डेटा भी ये लोग अच्छे से प्रेजेंट करते हैं इन टैबुलर फॉर्मेट, in interactive format, in graph format, and they also have time lapse feature which is very interesting. तो ये जो भी टॉपिक्स हैं इन पे बेस्ड जो भी रिसर्च है, जो भी राइटिंग्स है, वो सब आपको अवेलेबल हो जाएंगी. सो पॉपुलेशन रिलेटेड टॉपिक्स पे चीजें मिल जाएंगी, हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स पे, एनर्जी इन्वायरमेंट रिलेटेड टॉपिक्स, फूड, एग्रीकल्चर, पॉवर्टी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सारी चीजों पे आपको चीजें मिल जाएंगी. एजुकेशन, इनोवेशन, तो आप अपने लेवल पे वो तो आप जितना एक्सप्लोर करना चाहो वो चीज का तो कोई अंत ही नहीं है. बट लेट मी जस्ट शो यू अ फ्यू थिंग्स. सो इकोनॉमिक ग्रोथ की हम लोग बात कर रहे थे कि वन ऑफ द थिंग्स दैट वी टॉक अबाउट इज इकोनॉमिक जीडीपी पर कैपिटा, या फिर यू नो क्या बोलते थे, आउटपुट पर वर्कर जो है, विच इज काइंड ऑफ जीडीपी पर कैपिटा. व्हाई इज दैट डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंट्रीज? तो अगर आप यहाँ पे these numbers are for 2019, ठीक है, this is GDP per capita. Are you able to see this graph properly or should I zoom it? मैं zoom करूँ क्या इसको, अगर आप देख पा रहे हो अच्छे से इसको? It's clear. This is fine ना? ओके, ये तो मैंने बहुत छोटा कर दिया एक्चुअली. हाँ, सो व्हाट इज दिस? सो इन्होंने क्या किया, जीडीपी कैलकुलेट की हर कंट्री की. डेटा सोर्स के बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, बट वर्ल्ड बैंक डेटा के बेसिस पे इन्होंने किया 2017 प्राइसेस पे
और अब आप बोलोगे कि हर कंट्री की जीडीपी तो उसके खुद के प्राइसेस पे होती है, तो उन्होंने उसको पीपीपी में कन्वर्ट किया ताकि हर कंट्री सेम लेवल पे आए, ठीक है। अगर किसी को पीपीपी नहीं पता, दैट इज जस्ट अ वे ऑफ ब्रिंगिंग एवरीथिंग ऑन द सेम लेवल, ठीक है। तो जिससे हम कंट्रीज को आपस में कंपेयर कर सके। और फिर उन्होंने क्या किया, जीडीपी और हर कंट्री की पॉपुलेशन से डिवाइड किया, तो जिससे हमारे पास जीडीपी पर कैपिटा आया, ठीक है। अच्छा, अब इससे हमें क्या पता चलेगा कि अलग अलग कंट्रीज में एक इंसान के हिस्से कितनी जीडीपी आ रही है, ठीक है। तो अब 2019 का अगर आप डेटा देखो, इंडिया के हाथ में कितना आ रहा है, $6,711, ठीक है। If you talk about China, it is at $14,000. If you talk about Russia, it is at $28,000. If you talk about Australia, it is at $54,000. तो बेसिकली ये जो ग्राफ है, ये जितना डार्क होता जाएगा वो उतनी ज्यादा हाई जीडीपी पर कैपिटा पे। तो इतने डार्क एरिया में कौन कौन सी कंट्रीज दिख रही हैं आपको? यू सी ऑस्ट्रेलिया, राइट? And what else? This is US. What else is this? This is also US. Which country is this? This is Saudi Arabia. And then which other countries were there? We see Sweden, we see Norway, we see Germany. This was Iceland, and then the Norway, and then this is UK. So ये countries हैं जो बिल्कुल top $50,000 पर पर्सन के मार्कर को क्रॉस कर रही हैं। $50,000 इंडियन रुपीज में कितना होता है? 8 से मल्टीप्लाई करना, ₹80 अगर एक्सचेंज को माना जाए तो 8 5 जा 40। सो कितना हुआ? एम आई ऑडिबल? गाइस, कैन यू हियर मी? Yes, ma'am. हाँ, तो 50,000 जो है, Ma'am, $50,000 इंडियन 41 lakhs आ रहा है, फिर multiplied by 83. 83 कितना आ रहा है? 41,50,000. तो $50,000 पर एनम है ये, राइट? तो कितना होगा फिर एक साल में? 40 लाख, राइट? Yes, ma'am. तो ये उनकी क्या है, जीडीपी पर कैपिटा ऑन एवरेज। और इंडिया की कितनी आ रही है? 6,711। और ये कितना आएगा अगर इंडिया में कन्वर्ट करोगे ₹80 को, तो कितना आ रहा है? 6,000 इंटू 80। Around 5 lakh. 5,50,000 के around. तो दिस इज द एवरेज पीपीपी बेसिस पे, मतलब कि हर कंट्री की इन्फ्लेशन को कवर कर दिया जाए, तो दीज आर द नंबर्स दैट वी आर गेटिंग। तो ये 50,000 मार्कर कुछ फ्यू ही कंट्रीज क्रॉस कर पा रही हैं, एंड देन देयर आर दीज कंट्रीज, एंड देन देयर आर दीज कंट्रीज, एंड देन कम्स इंडिया। तो इंडिया और इसकी नेबरिंग कंट्रीज सारी सिमिलर ब्रैकेट में ही लाई कर रही हैं, राइट? सो यहाँ पे ये है, नेपाल इज इवन लोअर देन इंडिया, एंड देन पाकिस्तान इज ऑल्सो हियर। सो इस तरीके से जो है इन्होंने बाइफरकेट किया हुआ है। तो देर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, एंड मोस्टली जो लोअर इनकम कंट्रीज हैं वो आपको कहाँ पे दिखाई दे रही हैं? एक भी लोअर इनकम कंट्री आपको यहाँ पे दिख रही है क्या? इस कॉन्टिनेंट में, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में दिख रही है क्या आपको? देर इज ऑलमोस्ट नथिंग हियर, राइट? या तो अफ्रीका में दिख रही हैं या फिर आपको एशिया, साउथ एशिया में दिख रही है, राइट? तो यू स्टार्ट टू सी द पैटर्न कि क्या हो रहा है यहाँ पे। इज दैट ऑल राइट? कैन वी सी दिस ग्राफ? ये ग्राफ हमें समझ में आ रहा है? ठीक है। एंड ट्राई टू सी, अब इसका टाइम लैप्स देखो थोड़ा सा
कि ये 1950 से जीडीपी पर कैपिटा अब तक अगर देखें तो किस तरीके से मूव कर रहा है। तो दिस इज हाउ यू नो द थिंग्स आर मूविंग। तो ये लोग तो पहले से ही काफी हाई इनकम थे, हमेशा से ही। Yes. So sorry for the interruption, guys. So we see this time lapse video and इससे यही दिख रहा है कि ये कंट्रीज कभी भी इतने ज्यादा लोअर इनकम लेवल पे कभी रही ही नहीं। एंड कुछ कंट्रीज थी जो वो ग्रीन से ब्लू पे मूव कर रही हैं। तो दैट मीन्स दे आर प्रोग्रेसिंग, राइट। तो इस तरीके से भी आप काफी चीजों को देख सकते हो। सो दिस वाज वन थिंग दैट आई वांटेड टू शो। शेल वी मूव ऑन फ्रॉम दिस। इस ग्राफ में किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ और देखना है, इसको आप चार्ट फॉर्मेट में भी कर सकते हो। अगर आप इस चीज की अगर आप इस फॉर्मेट में टाइम लैप्स देखोगे तो दैट इज बेटर। ट्राई टू सी दिस, कि इसमें देखना कि कुछ कंट्रीज हैं जो बिल्कुल स्टार्टिंग में ना बिल्कुल सेम लेवल पे थी एंड देन सी देयर प्रोग्रेशन, हाउ सम ऑफ द कंट्रीज आर जंपिंग। कि इसमें आप देखो साउथ कोरिया किस तरीके से जंप कर रहा है एंड देन बीच में फिर चाइना हैज ऑल्सो स्टार्टेड मूविंग अवे। सी दिस। अब इसमें अगर आप मुझे बोलोगे कि मैं बाकी सबको हटा दूं, इंडिया, चाइना, जापान, बहुत सारी चीजों को मैं अगर मान लो हटा दूं, मैं अपनी मर्जी से सिर्फ अपनी चॉइस की कंट्रीज को भी रख सकती हूँ। जापान ऑलरेडी काफी पीक पे था, फिर साउथ कोरिया हैज बीन जंपिंग सो मच दैट इट हैज सरपास जापान ऑल्सो। So if you just see these two, let's say, if you just see their comparison, see this. South Korea कहीं था ही नहीं. Now see the level of progress that they are making. And if you want to see India and China, see their comparison. India and China. See this. So starting में they were at similar levels, and then they were kind of mixing up, and then China created a huge gap. स्टार्टिंग वेयर 1980s से इनके बीच में काफी डिफरेंस आने लग गया, राइट। तो इट कुड बी अ वेरी नाइस वे टू सी डिफरेंसेस बिटवीन टू कंट्रीज अगर आपको डायरेक्ट कंपैरिजन करना है। डू यू वांट टू सी एनी अदर ग्राफ, कोई एनी अदर कंट्रीज जो आपको कंपेयर करवानी हो? इंडिया के साथ अगर एनी अदर कंपैरिजन? No. Okay, fine. All right. So this is one graph that I wanted to show you. Apart from that, I also had something else in mind, which is this. So, have you guys heard of Gini coefficient? Gini coefficient, Gini coefficient. किसी ने सुना है Gini coefficient? क्या होता है Gini coefficient? If somebody has heard of it. तो इट्स बेसिकली अ मेजर जिससे हमें किसी भी एक कंट्री में कितनी इनइक्वालिटी है वो पता चलता है। तो ये जो एक नंबर होता है जो 0 से लेके 1 वैल्यू लेता है। अगर वो 1 से जितना नजदीक है, 1 के जितना नजदीक है, दैट मीन्स
वो कंट्री उतनी अनइक्वल है। अनइक्वल मतलब कि रिच लोगों के पास बहुत ज्यादा इनकम है, गरीब लोगों के पास जो, सो लेट्स से लोअर 10%, सो लेट्स से पुअर, सबसे पुअर 10% लोग हैं, उनके पास कितनी वेल्थ है, जो टॉप मोस्ट रिच 10% है उनके पास कितनी वेल्थ है। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता चलता है। तो जितनी ज्यादा अनइक्वल कंट्री होती है उतनी ज्यादा वैल्यू ऑफ गिनी कोएफिशिएंट होती है। सो वन के वो जितना नजदीक है उतना ज्यादा अनइक्वल है कंट्री। तो दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट वी स्टडी इन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, दैट व्हाई आर सम कंट्रीज सो अनइक्वल। सो अब इस केस में अगर आप देखोगे तो कौन कौन कंट्रीज जो है आपको बहुत ज्यादा अनइक्वल देखने को मिल रही हैं। सो लेट्स से एनीथिंग विच इज, लेट्स से बियॉन्ड 0.7, विच कंट्रीज आर दोस। 0.7 के बियॉन्ड मुझे कुछ प्लेसेस यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, जैसे कि जाम्बिया, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, बोट्सवाना, Namibia, and this is Central African Republic, and then this is Chile, and then this is Colombia, and then this is Mexico. अच्छा एक बात बताओ, जितनी ज्यादा इनइक्वालिटी होती है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? मेक्सिको, चिली, इस तरीके की कंट्रीज के बारे में आपने यूजुअली क्या सुना है? मैम इन्हीं कंट्रीज में हमने जीडीपी में बहुत इफेक्ट देखा था। जीडीपी में बहुत ज्यादा? कम जीडीपी थी इफ वी कंपेयर बोथ द ग्राफ्स हम्म। यहाँ पे, लेकिन अफ्रीकन स्टेट कंट्री, सॉरी। तो ये जीडीपी पर कैपिटा यहाँ पे काफी कम है, ये वाली कंट्रीज के इतने राइट, एंड ज्यादा नहीं उसमें है। वहाँ पे हाँ, इनइक्वालिटी ज्यादा है। और यहाँ पे इनइक्वालिटी भी काफी ज्यादा है। ठीक है, तो जीडीपी पर कैपिटा उतनी ज्यादा नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकंड ऑफ ऑल यहाँ पे काफी ज्यादा इनइक्वालिटी भी है। और इस तरीके की कंट्रीज में स्पेशली मेक्सिको, कोलंबिया, कोलंबिया, एंड देन दिस इज कोस्टा रिका, चिली, ये सब कंट्रीज, यहाँ पे फिर जितनी ज्यादा इनइक्वालिटी होती है, इनइक्वालिटी की वजह से क्या होता है? बहुत ही नॉर्मली सोचो, पॉवर्टी बढ़ती है। पॉवर्टी तो है ही, लोग गरीब तो हैं, इनइक्वालिटी है तो मेजर जनता के पास पैसे ही नहीं है या उनके पास एक्सेस नहीं है। तो लोगों को जब दिखता है कि सारे पैसे तो किसी बहुत ही छोटे चंक ऑफ लोगों के पास है, तो क्या होता है उनके मन में? व्हाट हैपेंस? जितनी ज्यादा अनइक्वल सोसाइटी होती है उसकी वजह से क्या बढ़ता है? डिससेटिस्फैक्शन, रिवोल्ट, केओस, लोगों को गुस्सा आना शुरू होता है, राइट? कि इतने कम लोगों के पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज हैं, और इतनी सारी जनता इतने कम रिसोर्सेज में अपने आप को चीजें केटर कर रही है। किसी ने वो मूवी देखी है? कौन सी मूवी है, एक एक मूवी को ऑस्कर मिला था अभी थोड़े दिन पहले, थोड़े दिन पहले नहीं मतलब 1-2 साल पहले, एक साउथ कोरियन मूवी थी जिसमें क्लास डिवाइड पे ही, पैरासाइट, यस, दैट वाज द मूवी। हैव यू सीन द मूवी? इफ यू हैव नॉट सीन द मूवी यू शुड वॉच द मूवी पैरासाइट। उसमें क्या है, मेन थीम क्या है कि एक बहुत ही रिच फैमिली है, एक बहुत ही पुअर फैमिली है, और क्या दिखाया गया है कि वो एक इंसान है। आई वोंट टेल यू द होल प्लॉट, इट जस्ट टेल्स यू द differences between the society, and when people see how the rich people are living and how they are treating them, then they feel very dissatisfied, right? तो लोगों को सबसे ज्यादा आज के दिन बहुत सारे लोगों को डर क्या है कि दुनिया में इनइक्वालिटी इतनी बढ़ रही है कि अल्टीमेटली एक टाइम आएगा जब क्या होगा कि पीपल विल स्टार्ट रिवोल्टिंग एंड फील लाइक कि बस हो गया बहुत, अब हम किसी की नहीं सुनेंगे,
अब there will be a full revolt, there will be anarchy, there will be chaos, we will start revolting. यूएस में बहुत सारे इसी तरीके के छोटे 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 प्रोटेस्ट हो चुके हैं. There is a book by Thomas Piketty. Thomas Piketty. Yes, Capital in 21st Century. In this particular book, he's talking too much about, wealth concentration. So, what is the main finding? तो उनकी मेन फाइंडिंग यही थी कि रिच जो है वो और रिच होते जा रहे हैं, गरीब जो है वो और गरीब होते जा रहे हैं. उसकी वजह से सोसाइटी में स्टेबिलिटी जो है वो गायब हो जाती है. एंड इसी तरीके की चीजें आपको आगे जाके देखने को मिल सकती हैं. दिस इज अ पोटेंशियल क्लेम. तो इस तरीके की चीजें आप देखो, ये कौन कौन सी कंट्रीज आ गई आपके पास. ये ब्राजील हो गया, बोलीविया हो गया, पेरू हो गया. ये इतनी अनइक्वल कंट्रीज है यहाँ पे, लेकिन इतना हाई लेवल ऑफ डेवलपमेंट नहीं है. और बाकी फिर आप ये देखो, यूएस जो है, यूएस relatively not, it is quite unequal, but relatively in this, lying in this bracket, it is quite unequal. India is also lying in the same bracket here. And which countries are quite, less inequality? कौन कौन सी कंट्रीज आपको देखने को मिल रही हैं? मोस्टली स्कैंडिनेवियन कंट्रीज. या कैन यू सी दोस हियर? ये देखो, नॉर्वे, नॉर्वे हो गया, ठीक है, आइसलैंड हो गया, फिनलैंड, स्वीडन. मोस्टली या तो इस लेवल पे वो है या फिर वो इस लेवल पे. यहाँ पे अपना नेपाल भी हो गया, ठीक है. ये कौन सी कंट्री है? साउथ कोरिया हो गया, आइसलैंड हो गया. ये सारी चीजें हो गई. ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टैक्स रेट जो है वो 40% टैक्स रेट है. वहां पे इनकम टैक्स जो है वो 40% है. And everything is provided by public. Health is provided by public. Education is provided by public. Water is provided by public. Everything. तो इसलिए, और पब्लिक सर्विस बहुत अच्छी है, इसलिए जब लोग इतना टैक्स देते भी हैं तो उनको बुरा नहीं लगता. इंडिया में टैक्स देते टाइम बुरा क्यों लगता है? क्योंकि आप टैक्स दे रहे हो लेकिन फिर आपको अप्रोप्रिएट सर्विस नहीं मिल रही, तो आपको बुरा लगता है. लेकिन ऑन द अदर हैंड वहां पे एजुकेशन इज टेकन केयर ऑफ बाय द गवर्नमेंट. हेल्थ, हर इंसान का हेल्थ इंश्योरेंस है, चाहे कोई भी हो वो, चाहे आप कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो, कुछ भी हो, आप सबको हेल्थ सर्विस मिलेगी. पानी, पानी टैप से आएगा, वो पानी आप पी सकते हो. देयर वर सम ऑफ माय फ्रेंड्स, सम ऑफ माय सीनियर्स आल्सो, दे वर डूइंग एन एमबीए. इट्स 3-4 साल पहले की बात है. तो दे वेंट फॉर एन एक्सचेंज प्रोग्राम. एमबीए में काफी एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है. तो दे वेंट फॉर an exchange program, and then they went for, there was some halt in these cities also. So then they were saying ki everybody was drinking water from taps, and in India we don't have this system now. We feel that tap water is not good. It's not feeling, it's actually true, tap water is not good in India. So they were feeling like ki um, एक हैबिट हो जाती है ना कि बहुत ऑकवर्ड लगता है कि ये टैप से पानी डाल के कैसे पी सकते हो, ये तो खराब ही पानी होगा. तो दे, इट वाज वेरी हार्ड फॉर देम टू एडजस्ट एंड फील कि हाँ ये पानी ठीक है और ये पानी पीने लायक है. तो उनको 1 हफ्ता 2 हफ्ता लगा इस चीज से एडजस्ट होने के लिए. सो इस तरीके की कंट्रीज जो है वो इक्वल क्यों है? क्योंकि उनका सिस्टम ही उन्होंने ऐसा बना दिया कि हर इंसान से बहुत हाई टैक्स लेंगे हम लोग, ठीक है. तो लोगों को टैक्स पे करने में भी प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि वो सर्विस बढ़िया दे देते हैं. तो इस तरीके की सिचुएशन. तो ये जो है, इसका भी आप टाइम लैप्स वीडियो देख सकते हो.
ओवर टाइम, पहले तो बहुत सारी कंट्रीज के लिए डेटा ही नहीं था, धीरे धीरे जो है अब आप मोर और लेस जो है इस तरीके की चीज में चार्ट्स को अगर आप देखोगे तो किसी भी कंट्री में इनइक्वालिटी जो है कम होती हुई नहीं दिख रही है, वो हर कंट्री में ग्रो ही कर रही है. So this is the basic gist of what has been happening here. So this is another thing that I wanted to show you. Apart from that, guys, the previous graph was fine, right? Are we following? Yeah, okay. So there is one more thing that we talked about कि population किस तरीके से move कर रही है. So if you see over time what is happening to population, ये मान लो 4-5 countries को अगर हम लोग देखें, if you want to see the map, population किस level पे है, this can tell you the numbers. And apart from that, if you want to see the charts, if you see कि population किस तरीके से move कर रही है, China was at the top and this was 2021 data. So India was just about to surpass it. So these are the numbers. अब इसमें जो है आप बहुत अलग अलग तरीके की चीजें देख सकते हो. जैसे मान लो डेथ रेट, अगर आप डेथ रेट की बात करो, जैसे हमने क्या बोला था कि ओवरऑल हेल्थ सिचुएशन हैज इम्प्रूव्ड इन कंट्रीज. तो हाउ डू वी सी दैट हैपनिंग इन रियल वर्ल्ड? तो अगर ओवर टाइम मुझे डेथ रेट मतलब हर 1000 लोगों पे व्हाट इज द नंबर ऑफ पीपल हु हैव डाइड. तो इफ वी सी if this is falling over time for different countries, so that means it is improving. So these graphs over time show that hanji, this is improving only. So these graphs have been falling for death rate for all the countries, right? So and beach mein, why is this spike? Can you tell me? ये suddenly बीच में ऐसे हाँ, this spike is because of COVID. ठीक है, but overall trend is death rates have been falling. Sudden spike was because of the COVID time. ठीक है, अब उसके अलावा आप हेल्थ बेस्ड और पैरामीटर्स देखना चाहो, पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन एज, एनुअल पॉपुलेशन चेंज, बर्थ रेट, child mortality rate, infant mortality rate, life expectancy, sex ratio, all of these things are there. Birth rate अगर आप देखना चाहो, so birth rate किस तरीके से you know, if you see, India had a high birth rate, but initially it was quite high, and then चाइना का बर्थ रेट काफी लो हो गया. चाइना का बर्थ रेट अभी काफी लो है. इंडिया का बर्थ रेट भी फॉल ही हो रहा है. Most of the economies have the birth rate which are falling, but initially if you see, this is the situation. चाइना ने तो अपनी पॉपुलेशन पे बहुत कंट्रोल किया है. तो these are the kind of patterns that you can see moving here. तो इस तरीके से आप अलग अलग चीजों को देख सकते हो. ठीक है, so yeah, this is a very nice website if you want to do preliminary research regarding anything. Ma'am, China always issues wrong or manipulating data. Yeah, obviously we cannot comment anything on the authenticity of data, but based on the given information, this seems to be working fine. Okay. हाँ, उसके अलावा जैसे मान लो करप्शन बेस्ड चीजें भी हम लोग बोल रहे थे, वुमेन्स राइट, करप्शन, जेंडर इनइक्वालिटी, चाइल्ड लेबर. सो मान लो करप्शन पे डेटा, इनका किस तरीके का डेटा है,
तो करप्शन बेस्ड इंडेक्स जो है, तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ऑब्वियसली ये इन्होंने खुद एक इंडेक्स प्रिपेयर किया है। अब उसमें उन्होंने कुछ क्वेश्चनेयर लिया होगा, बहुत सारी चीजें को अलग अलग कंट्रीज रिजेक्ट भी कर देती हैं कि ये बायस्ड है, बहुत सारे अलग अलग तरीके के क्लेम्स हैं, बट यू नो we can always comment on the authenticity, but based on whatever they have done, क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे क्या है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल्स करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ये इन्होंने कोई एक इंडेक्स पिक किया है एंड उसके स्कोर्स को इन्होंने मैप किया है। 0 मीन्स दैट करंट द कंट्री इज हाईली करप्ट एंड 100, जितना आप 100 के क्लोज जाओगे उतना लेस करप्ट होगा। तो बेस्ड ऑन दैट वी सी कि 100 पे कौन है, कोई नहीं दिख रहा हमें तो 100 पे। ऑस्ट्रेलिया is quite less corrupt according to this. Canada is less corrupt according to this, 81, कनाडा का काफी अच्छा स्कोर है। US is 71, US is 71 here, this is 84, this is 85, this is 85, Germany is 80, this is 72, 80, 73, Iceland, and then which country has gotten the score of 0 to 10? This country, this is Somalia, जिसको 10 स्कोर मिला है। एंड देन 10 to 20 के बीच में कौन सी कंट्रीज हैं? वेनेजुएला इज वन कंट्री। वेनेजुएला में तो इन्फ्लेशन का भी बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ पे एक कंट्री है कंबोडिया, एंड देन दीज कंट्रीज अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ऑल दीज कंट्रीज। वेयर डज इंडिया लाई? इंडिया इज लाइंग फ्रॉम 40 to 50। इंडिया इस रेंज में लाई कर रहा है जिसका स्कोर है 41। So this is the score. So ये करप्शन को भी जो है मेजर कर रहे हैं। So you should take some time and explore these things. They will tell you more or less lot of things. Broadly अगर आप चीजों को समझोगे इस तरीके से, बहुत सारी पॉलिटिक्स पॉलिसीज की चीजें आपको समझ में आएंगी based on these things. Women's employment, labor, working hours, corruption here, poverty की अगर बात करें तो यहाँ पे poverty के based share of population which is living in extreme poverty, if we have this data also, तो this is 2023, और यहाँ पे extreme poverty define किस तरीके से की गई है? International poverty line, which is if a person is living below $2.15 per day, $2.15 पर डे अगर कोई इंसान नहीं कमा रहा है, सो दैट पर्सन इज लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी। तो इंडिया में जो पॉवर्टी का नंबर है वो है 12.92% इन अकॉर्डिंग टू दिस। एंड देन सो अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, which countries are in extreme poverty? These countries: Democratic Republic of Congo, मोजाम्बिक, जाम्बिया। सो मोस्टली जो साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में है वो सब कंट्रीज ही यहाँ पे इस तरीके से शो कर रही है। मैम, इन इंडिया विच इंडेक्स इज ऑफिशियली यूज्ड टू इलस्ट्रेट करप्शन? इंडिया में कोई इंडेक्स है क्या? आई डोंट थिंक इंडिया का खुद का कोई इंडेक्स है। मोस्टली इंटरनेशनल एजेंसीज इशू करती हैं इस तरीके के इंडेक्स, बट आई विल चेक इफ एनी इंडेक्स इज देयर टू। एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट आती है जिसमें पता चलता है, जिसमें करप्शन का एक कंपोनेंट होता है, बट वो भी इंडिया खुद रिलीज नहीं करता है। I don't think these things are released officially by any particular country themselves. There are external agencies which report on that. So ease of doing business report is one जिसके numbers को काफी quote किया जाता है by different people.
politicians and all the other people. But I will check if there is any official statement on that. Okay. So yeah, all right. So guys, I would recommend you to go through this website. I will send the link for this on the WhatsApp group as well. So the idea was to just see कि इस तरीके से चीजें हैं. There are a lot of resources online and the classes are going to be very interesting. But हाँ, you have to keep your mind open and be ready for reading a lot. ठीक है, बहुत सारी रीडिंग आपको खुद भी करनी है. इफ यू थिंक कि हाँ ठीक है मैं पढ़ा दूंगी, वो तो मैं पढ़ा ही दूंगी, वो तो होना ही है. बट आप जितनी रीडिंग अपने लेवल पे करोगे, जितना चीजों को एक्सप्लोर करोगे, लॉट ऑफ रिसोर्सेज आर देयर, सो इट्स गोइंग टू हेल्प यू ओनली. ठीक है. और हम लोग थोड़ा सा we will try to make this course more and more interactive. We will try to see what all things are possible if somebody wants to get in the development economics field itself from the career perspective also. Okay, so I'll try to have incorporate some sessions related to that as well. We'll try to bring in people who are in this field and maybe try to talk to them as a part of this also. All right. So yeah, that was the introduction. And in case you have any questions or queries, feel free to ask me. Otherwise, we'll wrap it up for today and we will meet on Sunday now. Okay. So our classes will be on Friday and Sunday, 2 p.m. every time. Fine. All good? Okay. All right. Thank you guys. Take care. Bye-bye. Thank you. Thank you. Ma'am, is it Saturday? Ma'am, is Saturday? No. Today is Friday. The next class is on Sunday. The Dev Eco class is Sunday, Friday and Sunday, not Saturday. No. It's on Friday and Sunday. Okay. Yeah. Okay. Thank you.